السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے انگلش لینگویج میں پڑھ رکھا ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، چاہے اردو ہو، انگلش ہو یا ہندی ہو، پریپوزیشن کا یعنی حرف جار کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ سلائیڈ میں آپ لوگوں کو دکھ ہی رہا ہے، تو آج کی کلاس میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ پریپوزیشن یعنی حرف الجری۔ اس کو عربک میں کہتے ہیں حرف الجری، اردو میں کہیں گے حرف جار، اور انگلش لینگویج میں اسی کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے انگلش زبان پڑھ رکھی ہے تو آپ پریپوزیشن کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ ٹاپک انگلش میں انتہائی ڈیفیکلٹ مانا جاتا ہے کہ پریپوزیشن کا کیا رول ہے، کہاں کون سا پریپوزیشن یوز کیا جائے گا۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کا ٹیلی گرام چینل ہے، آفیشیل چینل ہے، اس میں کوئی فالتو کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو جو پی پی ٹی سے کلاس لی جاتی ہے اسی کی پی ڈی ایف وہاں سے آپ کو ملتی ہے، آپ وہاں سے لے کر کے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ جب کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، یعنی آپ اس میں اپنا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو کوئی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اب ہم آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی ٹاپک ایک نیا ٹاپک ہے، پریپوزیشن۔ پریپوزیشن یعنی حرف الجری۔ اس میں سے کچھ حرف جر یعنی پریپوزیشن جو عربک زبان میں بہت ہی فیمس ہیں، مشہور ہیں، اس کو اس ٹیبل میں دیا گیا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سلائیڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اسکرین پہ۔ ایک ہے مین۔ کیا ہے؟ مین۔ مین معنی ہوتا ہے فرام یعنی سے کے لیے۔ بظاہر میں اگر انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن اس کو جب آپ ترکیب میں دیکھیں گے، اسم سے پہلے جب یہ یوز ہوتا ہے تو اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کسی بھی زبان ہو، چاہے انگلش ہو یا عربک ہو، اسی طرح اردو، ہندی، ساری زبان میں۔ بظاہر آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ من یعنی سے کہیں گے تو کوئی نہیں، اگر اسم سے پہلے اگر لے آئے یعنی گھر سے تو اس کا ایک معنی ہو گیا۔ اسی کے ساتھ الہ، عربک زبان میں الہ ہے، اس کے مقابل میں آپ انگلش میں ٹو کا لفظ یعنی ڈیسٹینیشن کے لیے، آپ کہاں تک گئے اس کے لیے کیا آتا ہے؟ الہ عربک میں۔ جیسے ذہبت الی المدرسۃ، تو مدرسہ سے پہلے آپ الہ لے آئے۔ الہ کیا ہے؟ ایک ڈیسٹینیشن کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں تک گئے، اس کے لیے انگلش میں ٹو آتا ہے، بالکل اس کے مقابل میں۔ آپ دیکھیں گے فی ہے، عربک میں ایک ہے فی۔ فی ان کے معنی میں یعنی میں کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے لیے انگلش میں دو لفظ آئیں گے آپ کے، ایک آئے گا آپ کا ان، ایک آئے گا انٹو۔ انٹو میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو آپ انگلش زبان میں پڑھے ہوں گے۔ ویسے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جہاں
स्थिर चीज़ है। जैसे मैं कमरे में हूँ, पहले से आप प्रेजेंट हैं, वहाँ इंग्लिश में उसके लिए इन द रूम आएगा। और आप कमरे में दाखिल हुए, जहाँ मोशन पाया जाएगा यानी हरकत पाई जाएगी, वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। क्योंकि आप अरबिक ज़ुबान सीख रहे हैं, इंग्लिश को आप एज आ टारगेट लैंग्वेज के तौर पे सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपको इंग्लिश का भी हल्का फुल्का कायदा बताता चलूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि कहाँ इन आएगा, कहाँ इनटू आएगा। तो जहाँ मोशन पाया जाएगा वहाँ आपका इनटू है। जैसे दखलतु गुरफा, मैं कमरे में दाखिल हुआ। अब जब आप कमरे में दाखिल होंगे, आई एंटर्ड इनटू द रूम, तो वहाँ क्या हुआ, इनटू, क्योंकि आप बाहर से कमरे में जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ इनटू का यूज़ होगा। ये एडिशनल चीज़ थी, इसको क्योंकि इनटू आ गया तो मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया। आगे है ली ए फॉर के लिए, यानी के लिए, फॉर गोइंग जाने के लिए। तो इंग्लिश में भी आता है, इसमें से पहले फॉर आता है प्रीपोजिशन। और आला यानी कोई चीज़ ऊपर है उसके लिए अरबिक में आला का लफ्ज़ आता है। और आप देखेंगे इंग्लिश में उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं ऐड भी आता है, कहीं कहीं एबोव भी आता है, कहीं कहीं ओवर भी आता है, लेकिन सब में माइनर डिफरेंस है। अब उसको आप इंग्लिश के ग्रामर में सीख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसकी मिसाल देखिए। यहाँ इम्पोर्टेंट एक दो आपके पास जो है 5 मिसालें दी गई हैं। 5 हरफ़े जार जो अक्सर यूज़ होते हैं, एक मिन, एक इला, एक फ़ी, एक ली, एक आला। अब हम इसकी मिसालें पढ़ते हैं टेबल की शक्ल में। आपका अलग अलग कॉलम ABCD दिया हुआ है, और सब में जो जार के बाद जो आएगा वो मजरूर होगा। सबका अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग उसकी पोजीशन होगी। उसी को हमें आज की क्लास में समझना है। पहला आपने देखा हरफ़े जर आपने पढ़ा ही है कि मिन, इला, फ़ी, ली, अला। ये यूज़ होते हैं डेफिनिट नाउन से पहले और इनडेफिनिट नाउन से पहले। आप हरफ़े जार के लिए एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि हरफ़े जार के बाद हमेशा नाउन आएगा, इस्म आएगा। हरफ़े जार फ़ेल से पहले नहीं दाखिल होता है। यही कायदा आपका इंग्लिश ज़ुबान का भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर प्रीपोजिशन आया उसके बाद आप नाउन ही तलाश करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब को नहीं लगा सकते। ये इंग्लिश का भी रूल है, इसी तरह अरबिक का भी रूल है, दोनों का सेम है। आप दोनों को कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मिसाल लेते हैं, आपको मालूम है कुर्सी है, मारफा बनाने का, मारफा की किस्में 7 थी, उसमें से एक है मुअर्रब बिल्लाम, यानी कोई नाउन मारफा बनेगा अलिफ लाम लगा करके, यानी उससे पहले हम अलिफ लाम लगा करके भी मारिफा बनाते हैं। जैसे आप मिसाल में देखेंगे अलल कुर्सी, कुर्सीजुन से पहले अलिफ लाम लगाए यानी मारफा हो गया, यानी जिसको इंग्लिश में कहेंगे डेफिनिट हो गया, मुतय्यन। अलल कुर्सीजी ए मारिफा है, तो हम क्या कहेंगे, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। तो अलिफ लाम ले आए। आपको मालूम है अलिफ लाम के मुकाबले में इंग्लिश ज़ुबान में हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर नकीरा है तो ए और ऐन का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे आप मिन सदीकिन, मिन आपका क्या है, हरफ़े जार यानी प्रीपोजिशन है। उसके बाद सदीकिन क्या है, ये नकीरा है यानी इनडेफिनिट है। अब जब ये इनडेफिनिट है तो आप आर्टिकल इंग्लिश के ए और ऐन में से कोई एक यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐन आता है वावेल साउंड के लिए और ए आता है कॉन्सोनेंट के लिए। तो एफ कॉन्सोनेंट में से, इसलिए ए का यूज़ किए, यानी फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रॉम अ फ्रेंड। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं जी।
अब इसमें है कि आपने इससे पहले जार के बाद जो मजरूर है सिंपल एक नाउन था, जैसे सदीक, कुर्सी। अब आगे बी वाले कॉलम में आप पढ़ने जा रहे हैं, हरफे जार यूज होगा, वो जो इस्म बनेगा वो मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी की बहस इससे पहले दोनों क्लास में हुई, इससे पहले वाली क्लास में भी और उससे पहले वाली क्लास में भी, कि मुरक्कबे इशारी यूज़ हुआ ऐसा मुब्तदा, मुरक्कबे इशारी का इस्तेमाल ऐसा खबर। आपने इससे पहले अगर वो क्लास नहीं देखी है तो बराए मेहरबानी उसको आप देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे चलिए, फ़ी क्या है आपका? हरफे जार। अब उसके बाद जो हरफे जार के बाद जो आएगा वो क्या बनेगा आपका? मजरूर बनेगा। क्या होगा? वो मजरूर होगा। ये क्या है? ज़ालिका आपका इसमें इशारा, और उसके बाद इसमें इशारा के बाद जो आता है वो मुशारुन इलैह बनता है, अलबैती मुशारुन इलैह। इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर के मजरूर हुआ फ़ी हरफे जार का, प्रीपोजिशन का। तो क्या हुआ? इन डैट हाउस, यानी उस घर में। अब यहाँ इन है यानी घर में कोई चीज़ स्थिर है तो इन आया। अगर कोई बाहर से अंदर आएगा तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? अभी मैंने बताया था, वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं। जहाँ मोशन पाई जाएगी, जहाँ हरकत होगी, वहाँ क्या आएगा? इनटू। और जहाँ कोई चीज़ पहले से मौजूद है, प्रेजेंट है, वहाँ इन। अब आप देखेंगे दूसरा क्या है? लिहाज़िही तिलमीज़ती। लाम क्या है? हरफे जार। इसके लिए इंग्लिश में फॉर का यूज़ होगा। और हाज़िही इसमें इशारा, अत्तिलमीज़ती मुशारुन इलैह। इसमें इशारा मुशारुन इलैह में जो मुताबकत थी वो हर जगह पाई जाएगी। यानी मुशारुन इलैह क्या आएगा आपका? मारिफा आएगा। और इसमें इशारा के अकॉर्डिंग ही, मुशारुन इलैह के अकॉर्डिंग इसमें इशारा बदलेगा। पहले में ज़ालिका आया क्योंकि बैत क्या है? मुज़क्कर है, यानी आपका मैस्कुलिन है, और तिलमीज़ा एक फेमिनिन मुअन्नस है, इसलिए हाज़ी का यूज़ किए। आगे देखते हैं सी वाले में। सी में क्या है आपका? अला हरफे जार है। अला क्या है? आपका हरफे जार है, यानी प्रीपोजिशन है। उसके बाद अल कुर्सिजी अल कदीमी। कुर्सिजी क्या है? आपका मौसूफ। और अल कदीमी क्या है? सिफत। मौसूफ सिफत से मिल करके मजरूर हुआ आला हरफे जार के। तो हरफे जार के बाद मौसूफ सिफत की भी तरकीब आएगी, इसमें इशारा मुशारुन इलैह की भी आएगी, लेकिन ये उसके बाद इसम ही आएगा, यानी नाउन आएगा, अगरचे वो सिंपल आए या कंपाउंड की शक्ल में आए। तो अल कुर्सी ये अल कदीमी मौसूफ सिफत है। मौसूफ सिफत में चार चीज़ों में मुताबकत पाई जाती है, यानी उसका जेंडर, जेंडर का मतलब तस्कीर व तानीस एक जैसी होगी, इसी के साथ उसका नंबर वाहिद तस्निया जमा में एकसानियत होगी, इसी के साथ उसका डेफिनिट इनडेफिनिट यानी मारफा नकीरा में एक तरह होंगे, और चौथी चीज़ हालत एराब। चारों में एकसानियत आप देख रहे हैं। अल कुर्सी अलिफ्लाम के साथ है, इसलिए अल कदीमी भी अलिफ्लाम के साथ, वो मुज़क्कर दूसरा मुज़क्कर। इसकी तरफ मैं इससे पहले भी दोनों क्लास में इशारा किया था। अब आगे देखते हैं इला। इला क्या है? हरफे जार टू के लिए दुकानिन, दुकानिन करीबिन। दुकान क्या है? आपका मौसूफ। मौसूफ यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसकी सिफत बयान की जा रही है। सिफत हो यानी जिसके ज़रिए उस इस्म की अच्छाई बुराई, उसकी क्वालिटी, उसकी खराबी बताई जाती है। इला दुकानिन करीबिन। आपको मालूम है कि अरबिक में आपकी जो सिफत है वो बाद में आती है। इसके बरअक्स, इसके उल्टा अगर आप इंग्लिश देखेंगे, हिंदी देखेंगे या उर्दू देखेंगे, उसमें क्या है? आपकी सिफत पहले आएगी और उसके बाद जो मौसूफ इसम बनता है वो बाद में आता है। जैसे अच्छा लड़का, तो आ नियर बाई, नियर बाई शॉप। नियर बाई क्या है? ये जो है आपकी सिफत यानी एडजेक्टिव, और शॉप का है क्या है? उसका इस्म। चौथी मिसाल यानी डी वाला कॉलम लेते हैं।
इला मकतबिल बरीदी, इला हरफ जार, मकतबी मुजाफ, अल बरीदी मुजाफ इलैह, यानी इला हरफ जार यानी प्रीपोजिशन के बाद आपका मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब आएगी। मकतबी मुजाफ, अल बरीदी मुजाफ इलैह। आपको मालूम है कि मुब्तदा पे, यानी मुब्तदा कह रहे हैं, सॉरी, ये जो आपका मुजाफ है उस पे अलिफ लाम नहीं आता, इसी के साथ उस पे तनवीन नहीं आती। तो ये मकतबिल बरीदी, टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस इसी तरह यूज करते हैं। ऑफिस ऑफ द पोस्ट नहीं कहते, क्योंकि हमने पहले बताया था इंग्लिश की हमारी ये मजबूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नहीं है, इसका कायदा हम नहीं बनाते। हमने अंग्रेज़ को, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो, चाहे वो यूएसए हो, यानी अमेरिकन हो, जिस तरह वो यूज़ करते हैं उसी तरह हम भी यूज़ करेंगे। इसी तरह अरबिक भी हमारी ज़ुबान नहीं है, अहले अरब जिस तरह उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम इस्तेमाल करेंगे। इला मकतबिल बरीदी, मुदाफ मुदाफ इलैह है, लेकिन आप जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे द पोस्ट ऑफिस कह देंगे। मैंने इससे पहले भी इशारा किया था कि जब आप इस तरह इंग्लिश में कह देंगे पोस्ट ऑफिस, तो ऑफिस क्या हुआ, ऑफिस आपका नाउन हुआ, और नाउन से पहले जो आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसी तरह एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो एडवर्ब होगा। इस कायदे को, इंग्लिश लैंग्वेज के इस रूल को आप जहन में रखिएगा, इंशाअल्लाह आगे बहुत फ़ायदा होगा। इला मकतबिल बरीदी, पोस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव, ऑफिस क्या है, ये उसका इस्म है यानी नाउन है। अला सतही बैतिन, अला सतही बैतिन, अला के लिए ऑन द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, हाउस का यानी छत का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको क्या कहेंगे, सतहिन कहते हैं अरबिक लैंग्वेज में। तो उससे पहले आला है तो आन का यूज़ किए। उम्मीद है कि चारों मिसालें आपने देख ली। पहले में हमने सिंपल मजरूर, दूसरे में एक आपका इसमें इशारा मुशारुन इलैह, तीसरी मिसाल हमने पढ़ी मौसूफ सिफत, चौथी मिसाल हमने पढ़ी मुजाफ मुजाफ इलैह की। अब इसके बारे में मज़ीद डिटेल से इसकी तहकीक करेंगे, इसमें और क्या क्या बारीकियां हैं किनको हमें जहन में रखना है उसको अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अब हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को गौर करेंगे। आपने देखा है कि प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, हरफे जार कहेंगे, और उसके बाद जो आएगा वो, उसके बाद हुरूफे जर। हुरूफे जर कितने हैं, देखिए अरबिक ज़ुबान में हुरूफे जर 17 हैं, यानी 17 हैं। अब 17 को आप कैसे याद करेंगे, अगली स्लाइड में उसके ट्रिक के तौर पे उसको एक शेर की शक्ल में मैंने एक जमा किया है, उसको अगर आप देख लेंगे तो 17 का 17 आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसको अगली स्लाइड में देखेंगे। कितने हैं, 17, लेकिन जो मशहूर हैं उसको आपने देखा इला, अला, मिन, ली, ये सब ज़्यादा फेमस है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुछ तो आपको मेंशन किए गए, कुछ आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं अगली स्लाइड में आप लोगों के आसानी के लिए उसको जमा किया हूँ शेर की शक्ल में। तो हरफे जर आपको मालूम है किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। हरफे जार आया तो उसके बाद वाला इस्म होगा, संज्ञा होगा, यानी नाउन होगा। और जब आ जाएगा तो अपने बाद जो आएगा वो जेनेटिव केस में, यानी हालत जर यानी मजरूर वाली हालत में, यानी उस पर जेर यानी कसरा आएगा, यही कह रहे हैं। आपको मालूम है कसरे जब आता है तो उस पर जेर पढ़ते हैं। मिसाल नीचे दी गई है, कुर्सीजुन क्या है, मारिफा के साथ द चेयर है। अब हरफे जार शुरू में आ गया आला, आन बढ़ गया, ऑन द चेयर। कुर्सी जी क्या होगा, मजरूर की हालत में हो गई, यानी आखिर में या पे हम जेर पढ़ेंगे। हरफे जार आने के बाद उसके आखिर वाला मजरूर हो जाता है, इसको आप जहन में रखिएगा। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं।
अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हरूफ जर। मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आप शेर में याद करते हैं तो वो चीज़ आपके जहन में जल्दी बैठ जाती है। तो इसी को देखते हुए मैंने एक अलग से स्लाइड ऐड की है। इस शेर के ज़रिए हरूफ जर जो 17 हैं, 17 को एक शेर की शक्ल में जमा किया गया है। इसको देखिए, शेर क्या है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला, रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। जितने हैं 17, 17 के 17 इसमें जमा कर दिए गए हैं। एक मरतबा फिर इस शेर को पढ़ता हूँ, आपको PDF मिलेगी, उससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। आप हरफ जार अरबिक के जो प्रीपोजिशन हो हैं उसको आप जहन नशीन कर सकते हैं इस शेर के ज़रिए। यानी बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजू मुजखला, रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। हरूफ जार अरबिक में कितने हैं, 17। इसको आपने शेर के ज़रिए देख लिया है। आगे क्या है, वही कहा जा रहा है कि हरफ जार के बाद जो यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, मजरूर। क्या कहेंगे, मजरूर, क्योंकि उस पे क्या आएगा, कसरा आएगा। अब यही चीज़ कही जा रही है, मजरूर क्या हो सकता है, सिंगुलर वर्ड, यानी एक लफ्ज़ हो सकता है, जैसा आपने कुर्सी वगैरह देखा। इसी की तरह डेफिनिट होगा, आपने देखा एक अल कुर्सी था। इसी तरह एक मारफा भी आ सकता है, जैसे सदीकिन। और इसी के साथ जो है वो नकीरा भी आ सकता है। क्या आ सकता है, नकीरा भी। मारफा जैसे अल कुर्सी, सदीकिन जैसे नकीरा, इनडेफिनिट। अब आगे क्या है, मुरक्कब इशारी, जैसा कि बी वाला कॉलम था। मुरक्कब वसफ़ी, जैसा कि सी वाला कॉलम था। मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, जैसा कि डी वाला कॉलम था। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे यही बताया जा रहा है कि पहले में हमने देखा कि अला आया, अला माने ऑन, मिन माने फ्रॉम, कुर्सिजुन सदीकुन से पहले आया, और क्या हुआ, उसके आखिर में कसरा आ गया। और इसी के साथ अगर वो इंडेफिनिट हुआ तो क्या आ गया, तनवीन, यानी कसरे के साथ। जैसे मिसाल में हम देखिए, कुर्सिजुन है, अला आ गया अल कुर्सिजी, आखिर में ज़ेर तनवीन इसलिए नहीं आई क्योंकि अलिफ लाम के साथ है। दूसरे में मिन सदीकिन, सदीकिन नकीरा है इसलिए आखिर में तनवीन आई, और ज़ेर के साथ आई क्योंकि शुरू में मिन हरफे जार ऐड किया गया है प्रीफिक्स के तौर पे। अब हम आगे चलते हैं कि हरफे जार किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। इसको आप जहन में रखिएगा। अब हम देखते हैं बी वाली मिसाल। बी में हमने क्या पढ़ा था, हरफ जार मुरक्कब इशारी की शक्ल में होगा। आपको मालूम है इसमें इशारा मबनी होता है, हाजा हादिही जालिका तिलका। उसके बाद मुशारुन इलैह, अगर इंडिपेंडेंट है तो उस पर रफ़ा आता, आपको मालूम है। लेकिन अगर इससे पहले हरफ जार है तो कसरा आएगा, यही दिखाया जा रहा है। जैसे ज़ालिकल बैतु यानी डेट हाउस, हरफ जार नहीं शुरू में आया है, रफ़ा पढ़ रहे हैं। फ़ी आ गया, फ़ी ज़ालिकल बैती, बैती पे क्या आया, कसरा आ गया, यानी ज़ेर आ गया। इसको आपको जहन में रखना है, इन डेट हाउस। दूसरा हाज़िही तिलमीज़तु, हाज़िही इसमें इशारा मुशारुन इलैह पेश के साथ ज़म्मे के साथ आया, द प्यूपिल। अब है शुरू में जब लाम हरफ जार आ गया तो लिहाज़िही तिलमीज़ती, फॉर दिस प्यूपिल, फॉर आ गया शुरू में, मजरूर हो गया लाम की वजह से। अब आगे हम देखते हैं, आगे की इन चीज़ों को हमें जहन में रखना है। अब सी का हम इजरा करते हैं, सी का एनालाइज करेंगे। सी में क्या था, मजरूर मुरक्कब वसफ़ी था,
आपको मालूम है मुरक्कब वसफ़ी में एक मौसूफ एक सिफत, और अगर वो नकिरा है तो तनवीन आएगी, दोनों पे आएगी, अगर मारफा है तो दोनों पे तनवीन नहीं। वही चीज़ इस स्लाइड में कहा जा रहा है। जैसे आप देखिए अल कुर्सी अल कदीमू मारिफा है, डेफिनिट है, द ओल्ड चेयर। अब आगे है अला आ गया, अलल कुर्सी अल कदीमी, ऑन द ओल्ड चेयर। उम्मीद है समझ गए होंगे। दूसरी मिसाल दुकानुन करीबुन, दुकानुन मौसूफ करीबुन सिफत, अ नियर बाई शॉप। अब इला आ गया, इला दुकानिन करीबिन, यानी उसको हम कसरा दिए और तनवीन भी दिए क्योंकि वो नकिरा है, इंडेफिनिट है। अब आगे हम चलते हैं, सब के बारे में डिटेल से बताया जा चुका है। अब क्या होगा, आपका मजरूर डी वाले में क्या बन रहा था, मुरक्कब इज़ाफ़ी। आपको मालूम है मुरक्कब इज़ाफ़ी में हम किसका एतबार करते हैं, मुज़ाफ़ पे अक्सर ज़म्मा आता है, मुज़ाफ़िल है तो कसरा आता ही आता है। लेकिन यहाँ कंडीशन बदल रही है, इसलिए बदल रही है कि यहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से पहले हर्फ़े जार है, यानी प्रीपोजिशन 17 में से कोई एक है, इसलिए हम मुज़ाफ़ पे भी कसरा लाएंगे। यही चीज़ कही जा रही है। मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ पे क्या होता है, ज़म्मा आता है, लेकिन अगर शुरू में प्रीपोजिशन आया, हर्फ़े जार आया, तो मुज़ाफ़ का जो वावेल साइन क्या आएगा, कसरा आएगा। मिसाल के ज़रिए, मिसाल से आप चीज़ें ज़्यादा समझते हैं। जैसे मकतबुल बरीदी द पोस्ट ऑफिस, इला मकतबिल बरीदी, मकतबी पे क्या आया, ज़ेर आया, बाद में भी ज़ेर, इला मकतबिल बरीदी। आपको मालूम है मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन नहीं आती, उस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा क्या है, सतहु बैतिन, मुज़ाफ़िले पे तनवीन आई है। इसी तरह अला आ गया तो हा पे यानी सतही पे क्या आया, ज़ेर आ गया। उम्मीद है कि आप चारों मिसाल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने पहले एग्ज़ाम्पल देखा, 4 एग्ज़ाम्पल, कितने एग्ज़ाम्पल, 4, ABCD। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन यानी हरफे जार। हरफे जार कितने हैं, 17, आपने पढ़ लिया है शेर के साथ। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजू मुसखला रुब्बा हाशा मिन आदा फ़ियान इला हत्ता इला, फ़ियान आला हत्ता इला, 17 हैं जी। आप उसको स्लाइड में देख सकते हैं, पिछली स्लाइड में वो मौजूद है, आपको PDF मिल जाएगी, उसका रिवीजन कीजिए। अब जो चीज़ हमने आज की क्लास में सीखी है, ये हमें 100% हम इसको सीख लें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज भी कर लें, ताकि जो कुछ कायदा हमने सीखा है उसको बिल्कुल हम पूरी तरह ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि जब तक आप लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी तब तक आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अब हम एक एक करके जो हमने पूरा पढ़ा है कि हरफ़े जार के बाद मजरूर की जो किस्म है उसी का हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मैं हल करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप इसको इस एक्सरसाइज को खुद हल कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो देख सकते हैं और आप मिला सकते हैं, क्योंकि PDF आपको मिलेगी। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्या है, फिल जईबी। जईब माने क्या होता है, पॉकेट, यानी जो जेब होती है पॉकेट के लिए जईबी का लफ्ज़ आता। फ़ी है तो आपको मालूम है फ़ी है तो इन ही आएगा, इन। अलिफ लाम के साथ है तो दा यूज़ करते हैं, इन दा। अल जईबी है, क्या है, अल जईबी, जईब के लिए पॉकेट। इन द पॉकेट। अब आगे चलते हैं, अला ज़ालिकल मक़अदी। अला है तो ऑन आया, ज़ालिका है तो डैट। आपको मालूम है इसमें इशारा मुशारा इलैहि की तरकीब है, मजरूर। उसके बाद क्या, मक़अद। मक़अद ये सीट के लिए कहते हैं,
किसके लिए मकाद आता है? सीट के लिए, जिस पर आप बैठते हैं। आगे क्या है? अला सफ़हा अत्थानिया, यानी दूसरा सफ़ा, दूसरा पेज। तो क्या कहेंगे? अला है तो आन ही आएगा, आन द, दूसरे के लिए सेकंड, ऑन द सेकंड, और ये क्या है आपका? सफ़हा के लिए पेज। अब आगे क्या है? इला सदीकिन हबीबिन, इला है, सदीकिन हबीबिन क्या है? मौसूफ सिफत नकरा के साथ। इला है तो इसलिए डेस्टिनेशन के लिए क्या आएगा? टू, शुरू में है तो कैपिटल में रहेगा टू। सदीकिन हबीबिन यानी प्यारा दोस्त, तो क्या कह देंगे हम? डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। ली इब्नी खालिदिन, इब्नुन माने बेटा, खालिद नेम है, ली माने के लिए। के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? फॉर। क्या? फॉर। फॉर मालूम है निस्बत बयान करने के लिए, अगर वो पर्सन है या एनिमल है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो हम लिखेंगे पहले खालिद, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाए, कॉमा लगा करके खालिद बेटा यानी सन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम अब अगली एक्सरसाइज दूसरी लेते हैं। इसमें जो है आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश को हम क्या करेंगे? अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे, हरफे जार और मजरूर के साथ, और एराब भी लगाएंगे ताकि हमें समझ में पूरी तरह आए। पहले क्या है? टू द मार्केट। मार्केट के लिए अरबिक में कौन सा लफ्ज आता है? सूख। टू के लिए इला, इला इला सूकी। फ्रॉम दिस प्लेस, प्लेस यानी मकान के लिए, फ्रॉम यानी फ्रॉम के लिए क्या आएगा? मिन। क्या आता है? मिन, मिन। दिस के लिए हाजा, और प्लेस के लिए मकान, मिन हाजल मकानी। तीसरा है इन एन एक्सप्रेस ट्रेन। इन है, इन के लिए क्या आएगा? फी आएगा, आपको मालूम है। एन एक्सप्रेस ट्रेन यानी मौसूफ सिफत, तो हम क्या ले आते हैं? ट्रेन के लिए क़तार, फी है तो क़तारिन आएगा। और एक्सप्रेस यानी तेज रफ्तार, उसके लिए सरीइन। फी क़तारिन सरीन। आगे क्या है? टू द डीन ऑफ द फैकल्टी। क्या है? टू द डीन ऑफ द फैकल्टी। टू है, टू के लिए क्या आता है? इला, इला डीन ऑफ फैकल्टी यानी उसके लिए अरबिक में एक फ्रेज है कुल्लियतुल अमीदुल कुल्लिया। क्या? अमीदुल कुल्लिया, मुजाफ मुजाफिल है, अमीदुल कुल्लिया, डीन ऑफ द फैकल्टी। इला अमीदुल कुल्लियती। आगे है ऑन द वाल। वाल मतलब जिदार यानी दीवार पे। ऑन है तो आला, उसके बाद वाल के लिए अल जिदार कह देंगे, अल जिदारी। बस आज के एक्सरसाइज में हमने किया पहले इंग्लिश से, पहले अरबिक से इंग्लिश, इंग्लिश से अरबिक। उम्मीद है हरफ़े जार और मजरूर की मिसाल आपको पूरी समझ में आई होगी।
बस क्लास पूरी होने से पहले आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ये टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको PDF मिलेगी। वीडियो जाने से पहले आप लाइक करते हुए जाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि मोटिवेशन पढ़ाने वाले का इससे बढ़ता है। इसी तरह आप कमेंट भी करें, अगर कोई मशवरा है, कोई बात कहनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इसको दोस्तों को शेयर भी करें। इसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को साथ में दबा लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी लिंक आपको मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही। मअस्सलामा, इलल लिक़ा।